So, good afternoon, everyone. Now, we are going to continue with our lecture of probability. Now, once again, I will revise it for you. Now, probability is 12 marks in your board exam. So, 1 plus 1 plus 3 plus 3 plus 4, which is equal to 12 marks. So 2 and 6, 8 and 4, 12. So 12 marks sums are expected from this chapter probability. Okay, you may write this if you have not written it from video lecture. Now, once again, we'll go through the concepts and they are the most important. You should write them daily. Sample space, denoted by symbol U, is set of all, you also write with me, possible outcomes. Then intersection of events. Now what is intersection of events? Event A and B both occur together. Union of events. At least one of the event occurs. It means what? It means either A or B or both events occur. So very important, union of events, intersection of events. Then complementary event. यानी if event A is occurring, then all outcomes of sample space except those in event A will be in event A complement. So A complement यानी क्या? Sample space में अगर event A है 1, U is 1, 2, 3, 4, 5, 6, A है 1, 3, 5. तो A complement क्या है? 2, 4 and 6. All outcome of sample space except those in event A will be event A complement. Now, difference event. It means only one of the event occurs. यानी क्या? A occurs, B does not occur, और B occurs, A does not occur. So A में से B के एलिमेंट निकाल दो और B में से A के एलिमेंट निकाल दो. That is difference event. Mutually exclusive event. A and B both cannot occur together. That is A intersection B is equal to null.
in case you want to write this. Now, mutually exclusive event is that A and B both cannot occur together. Now, next one. Exhaustive events. Exhaustive events यानी क्या? Event A union B is equal to U. That is known as exhaustive events. यहाँ पे यूनियन ऑफ इवेंट में भी लिख देना A यूनियन B. रहेगा. So A और B का यूनियन, what you get is sample space. That is exhaustive events. Now, almost this is done. Now let's go to one of the sum in the illustration. Illustration number 8. Come to illustration 8. Now one number is randomly selected from first 50 natural numbers. Find the sets showing the following events. First, the number selected is a multiple of 5 or 7. Second, the number selected is multiple of both 5 and 7. And third, number selected is multiple of 5 but not multiple of 7. And fourth, the number selected is only a multiple of 7 out of 5 and 7. So these are the 4 options given to us. तुम तुम्हारा टेक्स्ट बुक प्लीज बंद कर दो और इसके ऊपर फोकस करो. Now, यहाँ पे we have multiple of 5 or multiple of 7. So we will take event A denotes that the number selected is multiple of 5. So A is equal to what? अच्छा, before that let's write U. U क्या है? First 50 natural numbers. So 1, 2, 3, it goes up to 50. Now A is multiple of 5. यानी आउटकम क्या आएगा? इसमें से 5, 10, 15, 20 goes on and on up to 50. So कितने numbers यहाँ पे आएंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Total 10 numbers. Total 10 numbers. Then event B is multiple of 7. So B is equal to 7. So you start with 7, 14, 21, 28, 35, 42 and 49. So 50 divided by 7 यानी 7 sevens are 49. So 7 number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now event A मिल गया, B मिल गया. अब first है, we have to find number selected is multiple of 5 or we are or 7. Now let's look at this number 35. ये जो number 35 है वो multiple of 7 भी है और multiple of 5 भी है. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? Multiple of 5 या multiple of 7. And can I say it also includes a number which is multiple of 5 and 7? 5 and 7. So यहाँ पे we use for the first one multiple of 5 or 7 के लिए we use A union B. So let's find out A union B.
which is equal to elements of A at the same time elements of B. So we can start writing. So 5, then 7, then 10, then 14, then 15, then 15, then 20, then 21, then 25, then 28, then 30, then 35, then 40, then 42, then 45, then 49, and then 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 numbers will come. Second. All of you understood this? Should I wait? Okay. Now second one. Multiple of both 5 and 7. Can you tell me what we will use over here? 5 and 7. A intersection B. A intersection B यानी both चाहिए तो A intersection B is what we will use. So A intersection B दोनों में कॉमन क्या है? चेक कर लो दोनों में कॉमन क्या है? Only 35. दोनों में कॉमन is 35. Do it on your own. हो गया सबका? Should I proceed? Maitri, the answer will be different for the fourth one. It will not be same as 3. Okay. Maitri. Yes, sir. ખ્યાલ આવ્યો તને આમાં હા હા E માંથી A ના એલિમેન્ટ કાઢી નાખવા
બી માં એનું એલિમેન્ટ શું છે? ખાલી 35 છે. તો મલ્ટિપલ ઓફ 7 જે છે એમાંથી 5 નું મલ્ટિપલ કાઢ નાખો. ખ્યાલ આવી ગયો? હેલો? હા, ઓકે. Yeah, perfect. 7, 14, 21, 28, 42, 49. Perfect. So there'll be only 6 outcome. Got it? Okay, now we'll do a very interesting sum. Take ministers as A, B, C, D. Now see here there are 4 persons. Okay, so we assume 4 person as A, B, C, D. अब मुझे 2 लोग को सिलेक्ट करना है. ओके, 2 लोग को. तो कल मुझे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि सर हम इसमें सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते. डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ये जो सम है एक्सरसाइज 1.1, मुझे किससे पूछा था कल डाउट, और जेन्युइन डाउट था. I'm not able to locate. Okay, in my messages. Okay, yeah, ये तनिषा ने मुझे डाउट पूछा था. तनिषा, आर यू देयर? You raise your hand. Okay, Tanisha, you unmute yourself. You start your video. Okay, so Tanisha, are you there? Yes, sir. Okay, now ये तुमने कल मुझे डाउट पूछा था रिगार्डिंग दिस सम कि सर हम इसमें कॉम्बिनेशन क्यों यूज नहीं कर सकते. नॉर्मली प्रोबेबिलिटी के सम में हम कॉम्बिनेशन ही यूज करते हैं इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ आउटकम्स. यू अंडरस्टूड व्हाट इज नंबर ऑफ आउटकम्स? Yes, sir. बट यहाँ पे हमें सैंपल स्पेस लिखना है. तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन से नंबर फाइंड कर सकते हैं, पर वो आउटकम कौन कौन से आ रहे हैं वो हम नहीं फाइंड कर सकते. तो वो हमें फाइंड करना है. अंडरस्टूड दिस? सर तो थर्ड वाले में तो क्या मीन्स क्वेश्चन 1 के थर्ड में क्या? सॉरी, थर्ड वाला? क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन है, थर्ड उसमें किया आपने कॉम्बिनेशन यूज. हाँ, पर उसमें सिर्फ नंबर पता चलेगा हमें. एक्चुअली पूरा सैंपल स्पेस लिखना है. मैंने यूज किया है कॉम्बिनेशन, बट उसमें यू हैव टू एक्चुअली राइट ए बी, ए सी, ए डी, ए, देन बी सी, बी डी, बी ई. अंडरस्टूड दिस? ओके सर. ओके, मैंने यूज किया है. आई अग्री विथ यू. तो वो तो ये करने के बाद वी विल आल्सो डू एंड वी विल चेक कि भाई हमारा प्रॉपर है कि नहीं आउटकम्स. ओके, ओके. नाउ we assume 4 person as A, B, C, D. Now हमें 2 चाहिए यहाँ पे लोग. एक चाहिए मिनिस्टर और एक चाहिए डेप्यूटी मिनिस्टर. तो लेट्स से इफ आई टेक 2 people in my bracket, okay, तो ये जो फर्स्ट वन है और ये जो सेकेंड वन है, इसमें एक को मैं लूंगा मिनिस्टर और एक हो जाएगा डेप्यूटी मिनिस्टर. इज दिस क्लियर? यानी इसका आउटकम U इज इक्वल टू पहला A और B. A और B तुम्हें ऐसे ही चालू करना है. A और B, फिर A और C, A कॉमा C, फिर A कॉमा D. तो A हो गया, A के साथ सारे कॉम्बिनेशन आ गए. फिर B कॉमा C. अभी हम सिर्फ प्रोग्रेसिव जाएंगे. ओके,
प्रोग्रेसिव यानी ऐसे ही मूव होंगे। फिर हम देखते हैं बाकी कैसे फाइंड करना। फिर बी और सी, देन बी और डी, एंड देन सी और डी। तो अब ये सब तो हो गए 1 2 3 4 5 6, बट यहां पे अगर तुम देखो ये कॉम्बिनेशन में, सिलेक्शन में, तो ए बन गया मिनिस्टर, बी बन गया डेप्यूटी मिनिस्टर, पर इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि नहीं है? बी कैन ऑल्सो बी अ मिनिस्टर, है कि नहीं? बी भी मिनिस्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्योंकि ऐसा कहा है कि 4 में से 2 लोग चाहिए, एक मिनिस्टर और एक डेप्यूटी मिनिस्टर। You understood this? See, here it is not like a match, cricket match, कि India Australia and Australia India is the same. Here it is 2 people. You understood this concept? यहाँ पे there are 2 people. तो A और B है, एक अलग ऑप्शन है, आउटकम है, दूसरा आउटकम है B और A, C और A, D और A, C और B, D और B, and D or C. Understood this? Understood this? Please write down. Now यहाँ पे हम इसके जो नंबर्स हैं, ओके 1 2 3 4 5 6 एंड 6 12, वो आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम अगर हमें फाइंड करना है, जो हम आगे के एक्सरसाइज 1.2 से करने वाले ही है, तो नंबर ऑफ आउटकम फाइंड करने के लिए भी हम यहाँ पे एक्चुअली कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या आता है 4C2 विच इज 4 में से 2, 4 into 3 upon 2 into 1, तो ये हो जाता है 6, पर यहाँ पे आउटकम है हमारा 12। तो इट इज एक्चुअली नॉट अ सिलेक्शन, बिकॉज योर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो योर आइडियली वी शुड यूज 4P2 which is 4 into 3 which is equal to 12। तो आइडियली यहाँ पे परम्यूटेशन यूज करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन नहीं। तुमने देखा दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, याद है सबको? परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन। परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ए और बी भी एक ऑप्शन है, और बी और ए भी एक ऑप्शन है, कि मैं बन गया मिनिस्टर, अमित सर बन गए डेप्यूटी मिनिस्टर, या अमित सर बन गए मिनिस्टर, मैं बन गया उनका डेप्यूटी मिनिस्टर। एक हो गया मोदी, दूसरा हो गया अमित शाह। पॉसिबल है ना? ओके, तो यहाँ पे इट कैन बी बोथ द वेज, एंड दैट इज व्हाई आइडियली कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे यूज किया तो वो सही नहीं है, ऑल्दो इट इज सिलेक्शन। तो यहाँ पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई वी गो फॉर आइदर परम्यूटेशन और वी डू इट मैन्युअली। ओके, वी नो कि दिस इज व्हाट, कि यहाँ पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो देन वी डू 4 into 3। Got it, all of you? Any doubt in this? Tanisha, you understood? Anyone else has any doubt? बधाने समझेगा? यानी सी समझना ये है कि जैसे मैंने तुम्हें कहा कि यहाँ पे हर एक सम टिपिकल है, हर एक सम में यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग, केस टू केस बेसिस है। इज दिस क्लियर? Okay, now fourth one. I really want to do the fourth one. Fourth one is a very interesting one, and in the textbook there is a printing mistake. In the question it is given a balanced die is thrown, but it is not a die, it's a coin, क्योंकि वो dice में heads या tails नहीं होता है। Now a balanced coin is thrown
in a random experiment till the first head is obtained. Till the first head is obtained, the experiment is terminated with the trial of first head. Write the sample space of this experiment and state whether it is finite or infinite. Now, I'm sure जिन्होंने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा उनको ये पता ही होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज ध्यान देना और प्लीज मेरे वीडियो लेक्चर्स देखना. ये मेरा फेवरेट सम है, इसके लिए मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ. मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें तुम्हें अप्लाई करना पड़ता अपना माइंड कि एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, ओके, और तब तक टॉस करते रहेंगे कि जब तक हमें फर्स्ट हेड, जब तक हमें हेड मिलता नहीं है. यू अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट? यानी तुमने पहले टॉस किया, ओके, पहला ही हेड मिल गया तुम्हें, तो तुमने एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया. तो एक आउटकम, एक पॉसिबिलिटी है कि इसका सैंपल स्पेस u, पहला पॉसिबिलिटी ये है कि हेड्स आया, तुमने एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया. पर ऐसा हो सकता है कि तुमने टॉस किया तो पहला टेल आया. अब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट खत्म कब होगा? द एक्सपेरिमेंट is terminated with the trial of first head. यानी पहली बार जब हेड आया तो एक्सपेरिमेंट हमने बंद कर दिया. तो इसके आउटकम्स क्या है? तो पहली बार टॉस किया, हेड आ गया, एक्सपेरिमेंट खत्म, हम घर चले गए. पर दूसरा आउटकम क्या है कि पहली बार टॉस किया, टेल आया, तो फिर से एक बार टॉस करना पड़ेगा कि नहीं? तो फिर से टॉस किया, हेड आ गया, एक्सपेरिमेंट खत्म. तो ये दो आउटकम पता चला सबको. तीसरी बार टेल 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 टेल, फिर हेड आया. चौथी बार टेल 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 हेड, फिर टेल 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 हेड. ऐसा हो सकता है कि मैंने 50 बार टॉस किया और 50 बार टेल्स ही आया. ऐसा हो सकता है कि नहीं? कहते हैं ना कि મારી કિસ્મત જ ફૂટેલી છે. Every time I buy a lottery, I don't win the lottery. I bought 100 lottery tickets. Possible है? You agree with me? You agree with me? तो it's an experiment. It's you are tossing a coin. एक random experiment है. तो यहाँ पे कितने आउटकम्स होंगे वो कोई कह सकता नहीं है. समझ में आया? Hence ये जो सैंपल स्पेस है इट इज इनफाइनाइट. इसका दूसरा एग्जांपल है लाइफ ऑफ अ टायर, कि एक टायर का लाइफ कितना है पता है, 0 से ज्यादा है, पर कितना है वो हम बोल सकते नहीं है. इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, इन टर्म्स ऑफ डेज और इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स रन. लाइफ ऑफ अ बल्ब, लाइफ ऑफ योर मोबाइल फोन, यू कांट से. तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस. पता चला? ये अच्छा था ये सम. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो ये फोर्थ सम हो गया. अब तुमने सब सम सॉल्व किए. इसमें एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 9, उसमें किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है 1 to 9 में? ये रहे स्क्रीन पे आ गए 1 to 9 में. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये डाइस नहीं है, कॉइन है. 1 to 9 में किसी को कोई डाउट है? नाउ 9th वन भी बहुत इंटरेस्टिंग है. इफ यू वांट आई कैन सॉल्व द 9th वन. ओके, वी कैन सॉल्व दिस टुगेदर. वेट,
Now, see the ninth one. Two numbers are selected at random from first 5 natural numbers. The sum of two selected number is at least 6, denoted by event A, and the sum of two selected numbers is even, is denoted by B. Write the set showing the following events and answer the given questions. Now there are 5 natural numbers. Now over here, 1, 2, 3, 4, 5, you get all the outcomes. Here 1, 2 is one of the outcome. Why can't we take 2, 1 as another outcome over here? Can anyone tell me? Archie, don't yawn. Can anyone tell me? अभी मैंने समझाया था तुम्हें मोदी जी और अमित शाह का एग्जाम्पल देके. कोई नहीं. No one wants to raise hand. Okay, Akruti. Yeah, tell me, Akruti. So in that previous sum, it was permutation, whereas in this sum, it is selection. So in the previous sum, it was permutation. So sir, we cannot, in that we could repeat the outcomes. because in the previous sum, the question it was given कि एक मिनिस्टर और दूसरा उसका डेप्यूटी मिनिस्टर. तो यहाँ पे मैं मिनिस्टर भी बन सकता हूँ, मैं डेप्यूटी मिनिस्टर भी बन सकता हूँ. पर इन दिस सम इट इज नंबर्स, और ऐसा कहा ही 2 ही नंबर सिलेक्ट करने. तो फिर 1 2 किया या 2 1 किया कोई फर्क पड़ता नहीं है. योर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे वी विल गो फॉर प्योरली कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है नहीं. समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सबको? तो आउटकम विल बी 10. गॉट इट ऑल ऑफ यू? अगर ऐसा कहा होता कि 5 नंबर्स, 2 नंबर्स आउट ऑफ 5 नंबर्स आर टू बी अरेंज, तो फिर बराबर है. 1 और 2 अलग अरेंजमेंट है, 2 और 1 एक अलग अरेंजमेंट है. समझ में आया? ये 1 और 2 है और ये 2 और 1 है, तो अरेंजमेंट चेंज हो गया. पता चला ये पार्ट? ओके. Now will you be able to do A, B, A union B? अच्छा, let's first find out A. Now A क्या है? A is equal to sum of two selected number is at least 6 is denoted by A. तो minimum 6, at least यानी कम से कम. तो 1 5 है, फिर 2 4 है, फिर 2 5 है, फिर 3 4 है, 3 5 है और 4 5 है. ओके, ये आउटकम लिख लिया सबने. 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 and 4 5. Can you do B on your own? Sum of two selected numbers is even, यानी दोनों का total should be even. So 1 2 will not come because 1 2 का total is 3, which is odd. So क्या आएगा? 1 3. Then 1 4 will not come. 1 5. Then 2 4. Then 2 5 3 4 will not come. 3 5. That's it. That's it. Check कर लो. Now question 12 is a very interesting sum. I'll read the sum for you first.
The event A1 and A2 of a random experiment are as follows. Find the set showing the union event A1 union A2 and intersection A1 intersection A2. Now A1 is given X, where X is, how do we read this? Please ध्यान देना. X is greater than 0, less than 5. पर यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है कि X क्या वैल्यू एज्यूम कर सकता है. तो यहाँ पे X कैन एज्यूम एनी वैल्यू विच इज मोर देन 0 बट लेस देन 5. इसका मतलब क्या है? It can be 0.1 also, it can 0.2 also, 0.5 also, 0.9 also, 0.00001 also, but it cannot be 0. X is greater than 0 and less than 5, yani it can be 4.9, 4.999999, it can be 2.1, it can be 2.3, it can be 2.3875. So यहाँ पे X can assume any value. You understood this? It can be fraction, it can be a natural number, whole number, not a whole number because 0 नहीं आएगा. You understood this? So कोई भी number वो assume कर सकता है. Got it? A1 क्या पता चला सबको? A1 का जो X है, it can assume any value. ये पता चला? तो मैं आगे बढ़ूं. ओके. नाउ A2 जो है, A2 वो है X greater than -1, less than 3, but X is an integer. यानी A1 जो है उसका तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. It is X greater than 0, less than 5. A2 is 0, 1 and 2. A2 is 0, 1 and 2. ओके. अब हमें क्या फाइंड करना है? A1 यूनियन A2, यानी इन दोनों का यूनियन. अब इन दोनों का यूनियन हम कैसे लिखेंगे? ध्यान दो. ये जो 0 to 5 है, A1 is what? All numbers between 0 to 5. A2 क्या है? A2 is 0, 1, 2. तो कहना ही से ये जो 0 है A2 में वो A1 में नहीं आता, पर ये 1 और 2 ये दोनों तो इसके अंदर आ ही गए. ये 1 और 2 A1 के अंदर आ गए, ये पता चला. तो यहाँ पे इन दोनों का यूनियन, यानी ये 0 भी आ गया और यहाँ पे ये इसके अंदर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 4.99 भी आ गया. So A1 union A2 will be equal to X, where X is greater than equal to 0, less than 5. श्रेया तुम क्या कर रहे हो बेटा? कैमरा ऑफ कर देने का ऑप्शन है तुम्हारे पास. ओके. चल, तो यहां पे ये पता चला A1 यूनियन A2. A1 यूनियन A2 पता चला. यू वांट मी टू रिपीट दिस? मैत्री तने समझाएगा वो बेटा? Zed, Feza. Okay. Now A1 intersection A2, यानी ये दोनों में कॉमन क्या है? अब 0 A2 में है पर A1 में नहीं है, तो 0 कॉमन नहीं है. पर कहना इसे ये 1 और 2 इन दोनों के अंदर भी आ गए. So it will be 1, 2. Understood this? Question 15. Sample space U of random experiment and its event A are defined as follows. Find the complementary event A complement
of A. It's not and. It is of A. Now U is equal to X. इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ, टाइपिंग में एरर हो गया है. X is greater than 0, less than 1. A is equal to X, where X is greater than equal to half. इसको भी मैं करेक्ट कर रहा हूं. Less than 1. नाउ ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने. अब तुम्हें क्या फाइंड करना है? ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो इसमें हम कैसे करेंगे? जो u है तुम्हारा वो है बिटवीन 0 से 1. नाउ ये लाइन को मैं टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि ना 0 है ना 1 है. ए क्या है? ए है तुम्हारा x is greater than equal to half, यानी 0 और 1 के सेंटर में कहीं हाफ है. इसको इक्वल टू है अप टू 1, बट इट इज नॉट 1. ये डायग्राम पता चला? ये डायग्राम पता चला ना? अब ध्यान दो, ये u जो है उसमें ये जो पोर्शन है ये तुम्हारा a है. तो कैन से ये जो बाकी पोर्शन है वो तुम्हारा a कॉम्प्लीमेंट है. तो बाकी पोर्शन क्या है? a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, कैसे लिखना है? x, वेयर x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 को टच नहीं कर रहा है, बट एंड लेस देन हाफ, क्योंकि हाफ तो a के अंदर है, तो यहाँ पे जो है वो लेस देन हाफ है. सो दिस इज द आंसर. Okay, now go through the exercise sums and illustration, or tell me if you have any doubts. I think जो important था वो सब मैंने solve कर दिया है. Illustration 10 अब तुम कर पाओगे. You won't face a problem. मेरे जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, तो तुम वो प्रॉपरली देखना प्लीज. ओके, क्योंकि ये सेम ही है, तो उसमें किया है वही है, तो कोई पॉइंट नहीं है मेरा कि मैं फिर से वो सब करूं. ओके, तो वो तुम लोग खुद कर लो एक बार, और जो नहीं आता है वो मुझे पूछो. आई थिंक आज के होमवर्क में होगा तुम्हारे बाकी सारे सम्स. आई थिंक अब तुम कर पाओगे. यू शुडंट फेस एनी प्रॉब्लम. नाउ ये जो 15th वाला था ना, वो लेक्चर 3 में है. ओके, मैंने लेक्चर 3 में सॉल्व किया है 15th सम. गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक. अभी तक कुछ किया उसमें कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो. अच्छा, फेस कार्ड वाला किया है तुमने सब? कार्ड्स वाला, हार्ट, क्लब, डायमंड, आज करना, वीडियो लेक्चर में है. ओके, डायग्राम भी मैंने बनाया था 11th में जैसे हमने किया था. याद है ना तुम्हें? बोर्ड पे मैंने ड्रॉ किया था, तो तुम लोग बुक में रेगुलरली ड्रॉ करते हो. आई के ऊपर डॉट नहीं, हार्ट आता है. ओके, हार्ट, क्लब, डायमंड एंड हार्ट, क्लब, डायमंड एंड लाल, काड़ी, चरकट અને ફલ્લી. हार्ट, क्लब, डायमंड एंड स्पेड. ओके, ब्लैक कलर का आता है ना पत्ते जैसा, स्पेड. स्पेड એટલે पावड़ो, वो डिग करने के लिए यूज करते हैं. तो अच्छा समय 11 एंड इलस्ट्रेशंस देख लो, हैव अ गो थ्रू. नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विथ
actual sums of probability. That is mathematical or the classical definition of probability. तो अभी तक हमने सिर्फ सैंपल स्पेस फाइंड किया है. तुम थोड़ा प्रिपेयर करके आना लेक्चर में, बिकॉज यहाँ पे मेरे जो लेक्चर है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है. तो तुम लेक्चर देख के आना, तो तुम्हें डाउट डिफिकल्टी हो तो यू कैन आस्क, तो वी कैन शॉर्टन द स्क्रीन टाइम. ओके, फिर जरूरत नहीं है जो उसमें किया है वो फिर से यहाँ पे करो. कुछ नया करेंगे डेफिनेटली, बट देन यू ऑल्सो कम प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो फिर अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आई विल वाइंड अप द सेशन. बोलो तनय. Sir, can you explain the example 10? एग्जाम्पल 10 यानी इलस्ट्रेशन वाला. Yes, sir. ओके, चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ. नाउ यहाँ पे दिया है A1 is given, A is given. Let me write it. X greater than 0, less than 1, A2, X is greater than equal to half, less than 2. हाँ, तो बहुत सिंपल है. इसमें भी हम इसका डायग्राम बनाएंगे. It got stuck up, just hold on. A1 X greater than 0, less than 1, and A2 X where X is greater than equal to half and less than 2. Now तने इसके लिए तुम क्या करना, पहले एक डायग्राम बना लेंगे अपने. ठीक है, 0 से 1. अब ना इसमें 0 आएगा ना 1 आएगा, बिकॉज ग्रेटर देन है. ओके, इक्वल टू नहीं है. बट A2 में क्या है, ये हमारा A1 का डायग्राम है. A2 का जो डायग्राम है वो हाफ है. मैं हाफ को कनेक्ट करता हूं, अप टू 2 है, बट 2 को कनेक्ट करता नहीं हूं. अब हमें फाइंड क्या करना है, A1 यूनियन A2. अब A1 यूनियन A2 के लिए कैन आई से ये सब आ जाएगा, 0 से ज्यादा और 2 से कम. So this will be A1 union A2. लिखना कैसे है, X where X is, ये सिंबल्स प्लीज याद रखना. ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पे नहीं आएगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 2. ये पता चला. ओके, नाउ अगेन लेट मी चेंज द कलर. अब मुझे क्या चाहिए, A1 इंटरसेक्शन A2, यानी दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है ये हाफ टिल दिस प्लेस, ये दोनों में कॉमन है. तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, X where X is greater than equal to half, क्योंकि हाफ दोनों में है, 0 to 1 में भी है और हाफ से 2 में भी है. बट लेस देन कितना, लेस देन 1. गॉट इट. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, तो ऐसा डायग्राम रफ में बना के करना. आई थिंक दैट्स द राइट वे टू डू इट.